Good morning, dear student. Become SEM 5 English Medium, RR Mehta College of Science and CL Parikh College of Commerce, Palanpur. Dear student, in our previous lectures, we calculated example number 10. Okay. Now, friends, in today's lecture, I choose example number 14. And friends, now today I will start our new method in our chapter. Dear student, in today's lectures, uh, you you learn to another method, uh, nature of merger and nature of purchase, and how to calculate this example with the help of nature of merger and nature of purchase. So friends, please listen me very carefully and uh, keep watch all the step how do I make the calculations, because in your university exam generally the examiner ask this type of questions, this type of example, unit number 3 and also in unit number 4. So I hope you understand my suggestion. Now friends, I start our example number 14. So friends, Arun Limited takes over Badal Limited on 1st April 2012 following the balance sheet of the companies immediately before such absorption. Okay, now friends, on liability sides, the Arun Limited and Badal Limited, the equity share capital rupees 100 each, 5000 means कि friends यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 30 लगाने 50 lakhs and then after 30 lakhs, 12 30% preference share capital to 22 lakhs and 70 lakhs. General reserve 5 lakhs and 2 lakh 50,000. Export profit reserve investment 3 lakhs and 2 lakhs. Allowance reserve Arun Limited dash and Badal Limited 1 lakhs. Profit and loss account 7 lakh 50,000 and 5 lakhs. 12% debenture 100 rupees is 5 lakhs and 3 lakh 50,000. Current liabilities 6 lakh 50,000 and 5 lakhs. Asset side fixed assets 63 lakhs 25,000 36 lakhs. Investment 7 lakhs and 5 lakhs. Current assets 28 lakhs 75,000 and 25 lakhs. Total both side of Arun Limited 99 lakhs and Badal Limited 66 lakhs. Now additional information, Arun Limited discharged the purchase consideration as under. Number one, issue 3,50,000 equity share of rupees 10 each at par to the equity shareholders of Badal Limited. So friends, we offer 3,50,000 equity shares to our Badal Limited. Number two, issue 40% preference shares of rupees 100 each at par to discharge the preference shareholders of Badal Limited at 10% premium. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें बादल लिमिटेड की जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको 10% प्रीमियम के साथ हमें प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं. Number three, debentures of Badal Limited will be converted into equivalent number of debenture of Arun Limited. यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है. तो डिबेंचर ऑफ बादल लिमिटेड विल बी कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ अरुण लिमिटेड. यानी कि सपोज कि यहाँ पे 3,50,000 है, तो सेम टू सेम उसको कुछ करना नहीं है, वो कन्वर्ट करके इसको क्या कर देना है, अरुण लिमिटेड बना देना है. जो बादल लिमिटेड था उसको उसका नाम चेंज करके क्या करना है, अरुण लिमिटेड कर देना है और कुछ नहीं करना है. Number four, this is important. The statutory reserve of Badal Limited are to be maintained for 2 more years. Means कि फ्रेंड्स जो बादल लिमिटेड है वो उसके जो स्टेट्यूटरी रिजर्व है, मीन्स के कायदेसर के जो रिजर्व है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो भी जनरल रिजर्व है, ऐसे जो इसके जो रिजर्व्स है उसको भी 2 साल के लिए उसके अपने खुद के पास रखेगा, उसको मेंटेन करेगा, वो सरेंडर नहीं कर रहा. किसको, अरुण लिमिटेड को. तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर अमलगेशन, तो उसका जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से हमें देना है वो समझना होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है वो पूरा गलत हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, जब भी मैं इस पॉइंट को, जब भी मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूं तब आपको उसको बहुत ही बारीक से देखना है. और लास्ट में, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अरुण लिमिटेड आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑन द assumption that A,
द अमलगेशंस इज द नेचर ऑफ मर्जर, एंड बी द अमलगेशन इज द नेचर ऑफ द परचेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बोला गया है, अब तक हमें हमें अब तक जितने भी एग्जाम्पल कैलकुलेट किए उसमें ऐसा नहीं बोला गया था। और फ्रेंड्स मेरे को कुछ बच्चों ने ऐसे रिक्वेस्ट भी की कि सर आप थोड़ा सा हिंदी में भी वीडियो बनाए ताकि हमें समझ में आए, इसीलिए अब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मर्ज करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम है तो कुछ बच्चे इंग्लिश में ही समझते हैं और कुछ बच्चे जो है वो हिंदी और गुजराती में समझते हैं, इसीलिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है, द अमलगेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर। सबसे पहले हम इस पॉइंट को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। तो इफ द अमलगेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो फ्रेंड्स वही पुरानी जो हमारी मेथड थी कि सबसे पहले हमें परचेज प्राइस जो है उसको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि उसी के बाद हमें पता चलेगा कि भी क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो फॉर परचेज कंसिडरेशंस बादल लिमिटेड, सिर्फ ओनली फॉर बादल लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, नॉट अरुण लिमिटेड, क्योंकि अरुण लिमिटेड जो है वो बादल लिमिटेड को, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अरुण जो है वो बादल लिमिटेड को परचेज कर रहा है, यानी कि उसको टेक ओवर कर रहा है। तो हम किसको दे रहे हैं सब न्यू सब, तो वो हम सब दे रहे हैं बादल लिमिटेड को। तो हमें बादल लिमिटेड के यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। तो सबसे पहले हम बादल लिमिटेड की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इसको कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर क्या है हमारे, तो 3,50,000 और 10 रुपीज, कोई प्रीमियम नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 3,50,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 35 लैक्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि हम 40% की न्यू डिबेंचर दे रहे हैं, सॉरी प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वो भी 10% प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड आउट करने होंगे, और उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि 70 लैक्स है अपॉन 100, यानी कि 730 है, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। ओके, अब उसको भी हमें अभी क्या करना है, कैलकुलेशन करनी होगी। तो 70,000 है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस कितना आएंगे, 70 लैक्स अपॉन 100 यानी कि 17,000। अब उसको हमें क्या करना है, 10 रुपीज 100 रुपीज का ही देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70,000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 70 लैक्स। ओके, देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर की प्रीमियम 10 is equal to 1,70,000. Total share capital our Badal Limited, the new share capital, okay, 35 lakhs plus 70 lakhs plus 1,70,000, total 53 lakhs 70,000 less। अब इसमें क्या करना है, हमें पुरानी जो थी बादल लिमिटेड की उसको क्या करना है, हमें डिडक्ट कर देना है। किस में से, तो न्यू शेयर कैपिटल में से। ओके, तो उसमें से हम अब इसको जो बादल लिमिटेड की जो पुरानी जो शेयर कैपिटल थी उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो 30 लैक्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,70,000, टोटल 47,000। तो अब यहाँ पे एक नई चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ अमलगेशन यहाँ परचेज की एग्जाम्पल अगर कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है जो न्यू माइनस ओल्ड, उसका जो डिफरेंस आएगा वो वहां पे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट पे ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 6,70,000। अब उसके बाद इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब क्या करना है, हमें डायरेक्टली उसका बैलेंस शीट बनाना है। किस मेथड से, तो नेचर ऑफ मर्जर। ओके, तो बैलेंस शीट आफ्टर अमलगेशंस ऑफ बादल लिमिटेड। तो सबसे पहले हम अपने क्या लिख देंगे, न्यू जो है हमारी वो जो इक्विटी कैपिटल है वो प्लस अरुण की, यानी कि इक्विटी कैपिटल तो जो 50 लैक्स इसके और 35 लैक्स जो थे वो यहाँ पे, तो 50 लैक्स प्लस 35 लैक्स यानी कि 85 लैक्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 22 लैक्स, और यहाँ पे हमने जो न्यू प्रेफरेंस शेयर दिए है 40% के, तो उसका टोटल है 18,70,000। तो 18 लैक्स सॉरी 17 लैक्स प्रीमियम अलग आएगा। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम 1,70,000। इतना सिंपल था, हमने आगे भी इसको देखा था। फिर से एक बार, पहले क्या करना है, अरुण प्लस बादल इसकी जो
अरुण की ओल्ड यहाँ पे बैलेंस शीट की है वो, और बादल की यहाँ पे हमने जो न्यू फाइंड आउट की है वो, उसको टोटल करके यहाँ पे हमें लिख देना है। उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल, तो यहाँ पे 30% और हम बादल को 40% दे रहे हैं, यानी कि 1% का डिफरेंट है, तो दोनों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 13% प्रेफरेंस शेयर और 14% प्रेफरेंस शेयर। और 14% जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम 10% प्रीमियम के साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम 1,70,000। अब उसके बाद अब बात करते हैं हम जनरल रिजर्व की। ओके, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व जो था हमारा वो, तो अरुण का कितना था 5 lakhs और बादल का कितना था 2,50,000, तो दोनों का टोटल यहाँ पे कर देते हैं। अरुण 5 lakhs और बादल 2,50,000, यानी कि 7,50,000। अब आपको इस एग्जांपल में क्या करना है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको आपको डिडक्ट करना है, उसमें से आपको उसको बात करना है, लेस करना है यहाँ पे जनरल रिजर्व। तो अब आपके पास क्लियर कितना रहेगा 80,000। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्ट्रक्चरल रिजर्व जो है वो अभी 2 साल के लिए उसके पास रहेंगे। ओके, तो उसको हम रहने देंगे, लेकिन इसकी इफेक्ट कहाँ देनी है वो हमें समझना है। तो उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो 5 lakhs 3 + 2 यानी कि 5 lakhs। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,50,000 प्लस 5 lakhs, ओके, तो 12,50,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 lakhs, 12% डिबेंचर 8,50,000 और करंट लाइबिलिटीज 11,50,000। यानी कि जब भी आप मर्जर टाइप का कर रहे होते हो तभी आपको जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसके पॉइंट को आपको ध्यान में लेना नहीं है। ओके, डायरेक्ट जैसा बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाया गया वो पूरा यहाँ पे चिपकाना है। मेन पॉइंट है यहाँ पे ये जनरल रिजर्व वाला, इसको आपको समझना है बार बार। सबसे पहले इन दोनों का टोटल करना है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आता है उसको वहां पे डिडक्ट करना है, लेस करना है, और जो डिफरेंट आएगा वो वहां पे बैलेंस शीट पे इधर लिख देना है। उसके बाद जो फिक्स एसेट थी दोनों का टोटल, इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल और करंट एसेट दोनों का टोटल, तो बोथ साइड जो हमारा जो था वो 1,65,00,000 हमारा टोटल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे अपने पॉइंट की, यहाँ पे नेचर ऑफ परचेज। ओके, तो नेचर ऑफ परचेज पे हम चलते हैं अब। तो जब अमल से जब परचेज पे हो तो सबसे पहले हमारी वही पुरानी मेथड, नेट एसेट्स हमें फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले जब भी परचेज टाइप का हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। ओके, याद रखना है आपको। तो नेट एसेट्स हमारी जो थी इसकी सिर्फ बादल लिमिटेड की, और उनकी आपको लेनी नहीं है बादल की। तो बादल की जो थी तो फिक्स एसेट 36 lakhs, इन्वेस्टमेंट 5 lakhs और करंट एसेट 25 lakhs, टोटल 66 lakhs। ओके, उसमें से लेस अब क्या करना है, तो उसमें से अब लेस करना है हमें अपने लाइबिलिटीज, तो 12% प्रॉफिट डिबेंचर्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो 5 lakhs सॉरी 3,50,000 प्लस 5 lakhs 8,50,000, यानी कि हमारी नेट एसेट्स कितनी आएगी 57,50,000। अब हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं, हमें अब यहाँ पे देखना है कि भी हमारी ये क्या है, हमारी परचेज प्राइस बोल सकते हैं हम इसको। ओके, जो शेयर कैपिटल थी वो पूरी पूरी ये हमारी परचेज प्राइस है, तो 53,70,000 हमारी परचेज प्राइस। और यहाँ पे हमारी नेट एसेट्स कितने हैं 57,50,000, यानी कि एसेट्स ज्यादा है और परचेज प्राइस कम है, तो डिफरेंट क्या कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज प्राइस, तो 57,50,000 माइनस 53,70,000, यानी कि डिफरेंस 3,80,000 रुपीज। इसको भी आपको याद रखना है, कैपिटल रिजर्व है ये। ओके, तो ये सिंपल था। यहाँ पे एसेट्स में से लाइबिलिटी को डिडक्ट कर दो, उसके बाद जो भी आए उसको यहाँ पे लिखें। उसके बाद तुरंत हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट आफ्टर अमलकेशन। पर कौन से, पर नेचर का, तो नेचर है परचेज का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आपने जो लिखी थी वही लिख देनी है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर सेम टू सेम, प्रेफरेंस शेयर अगेन सेम टू सेम, प्रेफरेंस शेयर। ओके, जनरल रिजर्व, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना होगा। अब आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ बादल लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years, तो ये आपको यहाँ पे मेंटेन रखना है, यानी कि आपको वहां पे उसका जो बादल लिमिटेड उसका यहाँ पे प्लस नहीं करना।
तो यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व किसका आएगा, अरुण लिमिटेड का। तो जनरल रिजर्व अरुण लिमिटेड का 5 लाख। ओके, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व मीन्स के कायदे के मुताबिक आपको अपने प्रॉफिट में से उसको ट्रांसफर करना ही होता है, इसीलिए। ओके, तो जनरल रिजर्व जो है वो 20% आपको अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, इसीलिए 5 लाख। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दोनों का टोटल 5 लाख। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दोनों सिर्फ ओनली 1 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, वो भी क्या हुआ, स्ट्रक्चर रिजर्व हुआ। तो आपको वो भी यहाँ पे बादल लिमिटेड का लिखना नहीं है, सिर्फ एक का ही लिखना है, 7,50,000। उसके बाद 12% प्रेफरेंस 8,50,000, करंट लाइबिलिटीज 11,50,000। और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कैपिटल रिजर्व 3,80,000। ओके, अब फिक्स एसेट्स यहाँ पे 90 लाख, दोनों का टोटल, इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल, करंट एसेट्स दोनों का टोटल, दोनों का टोटल हो गया। अब आप इस तरह का टोटल करेंगे, इस तरफ का, तो 1,68,00,000 होगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब 1,08,000 में 1,68,00,000 में से अब 1 2 3 पर्टिकुलर्स को आप डिडक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो 3 लाख है उसका आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो वो डिफरेंट क्या होगा, वो होगा आपका जनरल रिजर्व बादल लिमिटेड का और प्रॉफिट ऑन लॉस दोनों का टोटल, दोनों का टोटल जो है वो ही आपका वहां पे होगा। तो ये आपको वहां पे टोटल जो डिफरेंस है वो यहाँ पे अमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट पे लिख देना है, और उसके बाद आपका टोटल हो जाएगा 1,168। ओके, यहाँ पे जो भी डिफरेंस को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, अमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट पे ट्रांसफर करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। घर पे रहे, सेफ रहे, सलामत रहे। जय हिंद।